everyone, thank you so much for tuning in once again. Welcome to another new episode of Help My People show. As you all know that this show is about unemployed youth in Nagaland or in India or in general in any part of the world. We all know that unemployment is a very big problem, but nobody really talks about it. And there are a lot of youths out there who are really depressed, upset and stuff like this. So in this podcast in this show we basically want to motivate one another. And then there are some youths out there maybe who are thinking of which career path to choose. So in these career stories we have students from different parts of the world. So basically they are all studying engineering or medical or any different field. So when these people they watch all this episode, then they will get a brief idea about people who are studying engineering. For example, mechanical, if they want to study mechanical, then what career path they have to take and what they have to be careful. So with me I have brother Fazan. Thank you so much for coming to my show. Yeah. अभी रमजान चल रहे, फिर भी वो फास्ट कर रहे, फिर भी आपने टाइम निकाल के मेरे लिए यहाँ पे शो पे आया, इसलिए I'm really grateful and thankful. And I'm pretty sure that people will, the Pakistan out there, the youths, they will watch this show and then they will learn something from you, especially those people who are confused which career path to choose. And I'm pretty sure your career path is also really interesting. Yeah. So बहुत exciting है. Yeah. So without wasting any further time, could you please introduce yourself to our audience? Okay, so I think I will go with my own language. So मेरा नाम फैजान रऊफ है और basically मैं पाकिस्तान से हूँ, पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट गुजरात से. So काफ़ी लोगों को लगता है कि इंडिया में सिर्फ गुजरात है, नहीं पाकिस्तान में भी गुजरात है. So मैं गुजरात से हूँ और मैंने अपना बैचलर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया था पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से, basically from Beria University. It's a naval university. And then after completing my engineering from there, फिर मैं यहाँ पर जर्मनी के लिए मैंने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया. So जर्मनी अप्लाई करने के बाद यहाँ पर मेरा जो कोर्स है वो इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है. और अभी मैं रिसेंटली मैंने अपना प्रोजेक्ट खत्म किया और मैं अपना थीसिस स्टार्ट कर रहा हूँ. Thank you so much for giving us a brief overview about your education. So before digging into further detail, maybe I would like to know about how was your childhood? How was growing up as a child? How was it growing up as a child? So childhood memories. Yep. You can say my mother and father care a lot about me, so they don't allow me to go outside to play with somebody else. So उन्होंने मुझे कभी किसी के साथ खेलने नहीं दिया और मुझे कोशिश की कि मैं घर में रहूँ. Like they just asked me to play computer games और उन्होंने मेरे लिए Xbox ले दिया या मुझे PlayStation ले दिया कि मैं घर में रहूँ. और अगर मेरी स्कूल लाइफ की बात की जाए तो मैं आर्मी पब्लिक स्कूल से पढ़ा हूँ. आई थिंक इंडिया में भी आर्मी पब्लिक स्कूल है, तो मैं वहाँ से पढ़ा हूँ क्योंकि मेरे फादर आर्मी के बैकग्राउंड से थे. तो वहाँ पर मेरी सारी स्कूलिंग हुई. और स्कूलिंग से अब यहाँ से एक पॉइंट रेज होता है जो मुझे एक पाकिस्तान और इंडिया के सिस्टम का मुझे इतना आइडिया नहीं, बट हाँ अगर मैं पाकिस्तान सिस्टम की बात करूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है. क्योंकि पाकिस्तान में अगर आपके बाप के पास पैसा तो आप एक अच्छे स्कूल में पढ़ सकते हो एज कम्पेयर टू पुअर चिल्ड्रन. सो ऐसा था कि जब मैं APS में पढ़ा था तो मेरी ग्रूमिंग टोटली डिफरेंट हुई एज कम्पेयर टू द स्टूडेंट हु इज स्टडीइंग इन सम लो क्लास स्कूल लाइक इन अ गवर्नमेंट स्कूल और समथिंग लाइक दैट. सो मैंने ये चीज़ सीखी कि मुझे थोड़ा सा आइडिया था कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है या मेरा इंटरेस्ट क्या है. बट अगर मैं बात करूँ 70 to 80% पाकिस्तानी बच्चों की, उन्हें कुछ पता नहीं होता कि उन्हें क्या करना है या क्या नहीं करना. सो अब ये एक बहुत बुरी चीज़ है जो मुझे पसंद नहीं आई अपने स्कूलिंग सिस्टम में. मेरे ख्याल से अगर कल मेरे में कुछ हिम्मत हुई कुछ चेंज लाने की तो मैं पाकिस्तान में सबसे पहले चेंज यही लाऊंगा. नॉट इन ओनली पाकिस्तान, क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ पाकिस्तान लेवल भी कर सकता हूँ, बट होगा ऐसा कि एशिया में हो कुछ ऐसा कि हमारा स्टडी लेवल सारा सेम हो. मतलब देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन लाइक इन जर्मनी. चाहे वो गरीब का बच्चा चाहे वो अमीर का बच्चा है, वो एक ही सेम स्कूल में पढ़ रहा है, जो हमारे पाकिस्तान या इंडिया में ऐसा नहीं है. थैंक यू सो मच. आपने पाकिस्तान में बहुत अच्छे से फोकस किया जो बच्चों लोग कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं ना. तो आपने ये पॉइंट आउट किया. तो मैं अभी आई वांट टू डिस्कस फर्दर लाइक अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन व्हाट चेंजेस कैन वी ब्रिंग सो दैट वी कैन चेंज दोस सिस्टम. अच्छा, मेरे ख्याल से सबसे पहली चीज़ तो हमें जो चेंज करनी चाहिए वो ये है कि हमें ना एक स्टैंडर्ड पे थिंग मीन्स के हर एक बंदा मिनिमम इतना कमाए, हमें कुछ ऐसा सेट करना चाहिए. क्योंकि
एक सबसे अच्छी चीज़ मुझे जर्मनी की जो सबसे अच्छी चीज़ लगी वो ये थी कि यहाँ पर एक नॉर्मल एवरेज पे भी 2000 यूरो या 2500 यूरो है। सो इसका ये फ़ायदा है कि आपका जो डिफरेंस है बिटवीन रिच एंड पुअर इज़ वेरी लो, बिकॉज अगर मैं कल प्रोफेशनल जॉब या इफ़ यू वर डूइंग योर प्रोफेशनल जॉब सो यू इवन अर्निंग 3500 यूरोज, so there is not a huge difference between a 2500 euros and 3500 euros। तो सबसे पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए कि एक गरीब और अमीर में डिफरेंस बहुत कम हो जाना चाहिए ताकि वो एक सेम लेवल पे लाए करें। सेकेंडली मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एजुकेशन सिस्टम। आई थिंक there should be no private schools, there should be no government school, there should be only one school which even controlled by the government or even by some private institute, I don't care, but there should be only one thing, so that the same standard they have, that the one thing I just want to add on कि ऐसा था कि हमारे पाकिस्तान में ये भी सिस्टम है कि वहाँ पर O levels और A levels भी करवाया जाता है। You have an idea about O levels and A levels, so O levels A levels में बच्चे ऑक्सफोर्ड की बुक्स पढ़ रहे हैं, so they have a very creative mind as compared to us। Even I studied in APS Oxford's books, but मसला ये है कि 70 से जो 80% लोग हैं वो ऑक्सफोर्ड की बुक्स नहीं पढ़ पाते, जिसकी वजह से वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। तो अगर आप बात करते हैं कल अगर कोई मेडिकल एग्जाम है या इंजीनियरिंग का एग्जाम है तो एक ऑक्सफोर्ड की बुक्स पढ़ के जो बच्चा है वो उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएगा एज कम्पेयर टू कि कोई ऐसा बच्चा जिसने एक नॉर्मल बोर्ड्स की बुक पढ़ी हुई है। सो मेरे ख्याल से ये चीज़ तो बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। अगर ऑक्सफोर्ड की बुक्स पढ़ानी है तो फिर ऑक्सफोर्ड की सबको पढ़ाई जाए, और अगर नॉर्मल पढ़ानी है तो सबको नॉर्मल पढ़ाई जाए। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। So, brother, since we were talking about career stories, like you said that in bachelor's you choose engineering, right? Yep. So maybe there are some people out there who wants to choose your field, but they don't know exactly what it is inside this field. So maybe could you please give a brief overview about your field and what motivated you to choose that field, and then like why should somebody choose this field? Okay, so basically पहले तो बस सिंपल सा नॉलेज देता हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। सो अगर आपका इंटरेस्ट आप somehow physics, mathematics और something like electronic components में है, so अगर आपको ये सीखना है कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स काम कैसे करते हैं, मैं बड़ी बेसिक सी बात बता रहा हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा डीप जाऊँगा। सो अगर आपको ये चीज़ें लर्न करनी है सो यू शुड कम टूवर्ड्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेरे ख्याल से जो है वो कंपोजिशन है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर टाइप इंजीनियर का। मीन्स आपको थोड़ा सा लाइट नॉलेज होता है सॉफ्टवेयर, means how a programming language works, like different types of programming language, you can say C++ or Python। so एक ये भी एज होता है कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी आती हैं, और दूसरा आपको हार्डवेयर का एज होता है, like you know how to design an electric circuit, you know how to make it on a different type of boards, like in electrical engineering we use the terms that PCB layout or so आपको इस चीज़ का भी नॉलेज होता है। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 डिफरेंट डोमेन्स आती हैं। पहली डोमेन होती है पावर, दूसरी डोमेन होती है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड तीसरी डोमेन होती है टेलीकम्युनिकेशन। अगर पावर की बात की जाए तो पावर इज समहाउ लाइक दैट यू कैन से दैट हाई पावर हाई वोल्टेज थिंग्स। मतलब अगर आपको काम करना है कल डैम्स में, अगर आपको कल काम करना है रिन्यूएबल एनर्जी में लाइक विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, और यू वर वर्किंग सम हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो फिर आप पावर को चूज़ करते हो जहाँ पर आपको पता चलता है कि मशीन्स कैसे काम कर रही हैं, टर्बाइंस कैसे काम कर रहे हैं, जनरेटर्स कैसे काम कर रहे हैं। सेकेंडली सेकेंड थिंग जो स्पेशलाइजेशन होती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वो इलेक्ट्रॉनिक्स होती है। और अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स इज समहाउ लाइक यू से दैट इट्स अ स्मॉल बेस्ड लेवल इंजीनियरिंग जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के स्मॉल कंपोनेंट्स का पता चलता है। I will use some names, I don't know those who are listening have some idea of it or not. It's like if you are thinking about how does transistor works, how does the ICs work, how does resistor or all these type of things work, और इनकी फैब्रिकेशन कैसे होती है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ आना चाहिए। और आपको पता आपको इस चीज़ में अगर आप आगे मोड़ जाओगे तो आपको ये पता चलेगा कि आप IC डिज़ाइन कैसे करते हो, आप सर्किट डिज़ाइन कैसे करते हो। अब थर्ड जो रिसेंटली अभी मैं कर रहा हूँ वो टेलीकम्युनिकेशन। अब टेलीकम्युनिकेशन एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसमें काफ़ी चीज़ें आती है। इसमें आपकी माइक्रोवेव्स आती है, आपकी डिजिटल कम्युनिकेशन आती है, आपकी वायरलेस कम्युनिकेशन आती है, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन आती है। अगर एज ए लेमैन बंदे को मैंने समझाना हो तो मैं इस तरह समझाता हूँ कि आप सब मोबाइल यूज़ कर रहे हो, 5G यूज़ कर रहे हो, 4G यूज़ कर रहे हो। सो अगर आप एक टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर बनते हो तो you will think that you will be working as somewhere in a company like Nokia or like Ericsson or like O2 or Vodafone. So
it's an Airtel or something like that. So आप वहाँ पर काम करेंगे और आप वर्क कर रहे होंगे कि कैसे 6G कम्युनिकेशन काम कर रही है, कैसे 5G कम्युनिकेशन काम कर रही है. सो ये एक बेसिक रिव्यू है, बेसिक आइडिया है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का. जो थैंक यू सो मच दैट आपने बैचलर्स में जो क्या किया और उसका बेसिक ओवरव्यू बहुत क्लियर से समझाया. एंड आई एम प्रीटी श्योर जो लोग पढ़ने का मान होगा ये फील्ड उन लोग को आइडिया मिल गया, बेनिफिट मिल गया. तो थैंक यू सो मच. एंड अभी हम लोग आपका मास्टर्स के बारे में थोड़ा बात करेंगे, ठीक है? और आप ये बताना आपने मास्टर्स में कौन सा फील्ड चूज किया और आपने ये क्यों डिसाइड किया ये फील्ड, और जैसे कि लोग होगा दे आर इंटरेस्टेड टू परस्यू योर फील्ड ना, तो वो थोड़ा बताना. अच्छा, जब मैंने बैचलर कंप्लीट किया तो मेरे पास 3 ही ऑप्शंस थी, लाइक जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया कि या मुझे पावर में जाना है, इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है, या मुझे टेलीकॉम में जाना है. तो मेरा ये डिसीजन था कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं कुछ नया सीख सकूं. सो अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर की फील्ड में काफ़ी ऐसे काम हो चुके थे जो अब हम उन्हें और एडवांस नहीं कर सकते, लेकिन टेलीकॉम एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आप और एडवांसमेंट ला सकते थे. तो मुझे कुछ नया सीखना था, तो दैट्स द रीज़न व्हाई आई चूज दिस कोर्स. और अब बात की जाए अगर मेरे मास्टर जर्नी की, तो आई एम करंटली वर्किंग एज यू कैन से कि मैं अभी सारा काम जो है वो 4G 5G की रिसर्च पे और 6G की रिसर्च पे कर रहा हूँ. और मेरा ये शौक है कि मैं कल जॉब भी जो है वो इसी चीज़ का रिलेटेड करूँ. तो ये सारी ऐसा जर्नी थी. और अभी रिसेंटली जो मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है वो भी 6G के रिलेटेड चल रहा है. और आई एम होपिंग टू फाइंड सम थीसिस इन अ कंपनी where I can do some research type thesis related to 6G type thing. Yeah. Okay. So, brother, in any area that you are comfortable, could you maybe explain a little bit about your project that you worked on your masters? Okay. If I talk about my project in the master, I'm currently working with some intelligent reflecting surfaces. So the main idea behind it, I will not go to the depth, but I will give you the short overview. So the main idea behind this project is to make the high data rates, which was a basic need in 6G communication. So we were trying to make some reflecting surfaces which were pretty intelligent, and we can implement it on the buildings or on the roads or even on the even they were thinking to implement it on something like clothes of a person, so that we have more signal propagation and we can get the higher data rates. So that's the idea behind intelligent reflecting surfaces. If you just want interested in this, you can search it on Google Scholar or on IEEE, so you can find different type of papers for it. Thank you, brother. Yes, brother, so since you know very well that we are focusing on the unemployed youths in general, now I will give you the time to talk from your own native language, and I'm pretty sure that there will be unemployed youths out there who are depressed, thinking like this is the end of the world. So based on your personal experience, please take this time and then any words of encouragement or any tips that you would like to give them. Okay, so to be honest, मैं उर्दू में बात करूँगा और मैं क्योंकि अपनी ज़ुबान में अच्छा समझा सकूँगा. हम 4-5 इंजीनियर्स जब भी इकट्ठे बैठते हैं तो हम हर दफ़ा ये सोचते हैं कि हम सबको पता है कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा चल रहा है, मतलब हर जगह पे वो ट्राई कर रहे हैं कि उसे इम्प्लीमेंट कर पाए. लेकिन अब टेंशन की बात यह है कि अगर आप जर्मनी की बात करो या चाइना की बात करो या अमेरिका की बात करो तो ये एक डेवलप्ड कंट्रीज़ है और यहाँ पर कभी ये मसला नहीं होगा कि यहाँ पर कोई भूखा मर जाएगा. लेकिन अगर हमारे मुल्कों की बात की जाए तो वहाँ पर इतनी डेवलपमेंट नहीं है और वहाँ पर हमेशा सबसे बड़ा मसला ये होगा कि हम लोग भूखे मरेंगे. तो मेरा आज के यूथ से सिर्फ एक छोटा सा सवाल है, क्या तुम लोग अपने आप से सेटिस्फाई हो जो तुम कर रहे हो? मतलब मैं अपने इर्द गिर्द देखता हूँ, they were just trying to make TikTok videos, they were just trying to make Instagram videos. I'm not against these things, but क्या तुम कल ये कुछ करके क्या तुम अपने घर को चला सकोगे या क्या तुम अपने मुल्क को आगे बढ़ा सकोगे? I'm just thinking about Pakistan and India. तो आपको क्या लगता है कि क्या मतलब हम अगर मतलब आजकल के यूथ को देखा जाए, आप ना हार्ड वर्क कर रहे हो, you were waking up at 12 o'clock, you aren't thinking about your goals. तो मेरा पॉइंट ये है कि पहले एक चीज़ क्लियर कर लो कि आपको करना क्या है, ठीक है? इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम, अब वो दौर नहीं रहा कि मुझे पता है मेरे पाकिस्तान में कई लोग ऐसे जॉब्स कर रहे हैं जो सिर्फ साइन करते हैं और उस चीज़ पर उन्हें जॉब मिली हुई है, लेकिन अब वो ऐसा टाइम नहीं रहा. अब आपको सिर्फ सिग्नेचर्स करने पर जॉब नहीं मिलेगी.
यू हैव टू लर्न समथिंग. जब तक तुम्हारे पास कोई स्किल नहीं होगा, और अपडेटेड स्किल्स, अब देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अ स्किल एंड एन अपडेटेड स्किल. अगर आज मैं कोई सॉफ्टवेयर सीख लेता हूँ, छोटी सी मिसाल देता हूँ, सॉफ्टवेयर सीख लेता हूँ और मैं 2 साल बाद ये कहूँगा कि मैं उसी सॉफ्टवेयर जो मैंने सीखा था आज से 2 साल पहले, मैं उसी पर जॉब मिलेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है. क्योंकि हर सॉफ्टवेयर का न्यू अपडेटेड वर्जन हर 1 साल बाद आएगा, तो मुझे वो हर 1 साल बाद अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा. तो पहले तो ये चीज़ क्लियर कर लो कि यू नीड एन अपडेटेड वर्जन ऑफ द स्किल्स. सो टू बी वेरी क्लियर. सेकेंडली आई जस्ट से थिंक अबाउट योर मदर एंड फादर, बिकॉज दैट, अब मुझे नहीं पता कि जो देख रहे हैं वो अपने माँ बाप के बारे में क्या सोचते हैं, बट एज मैं पाकिस्तान से, मुझे इंडिया के सिस्टम का ही पता है क्योंकि मेरे इंडियंस दोस्त भी हैं. तो एक फैमिली सिस्टम है, तो उनके बारे में कुछ सोचो कि यार चलो, उन्होंने कितनी मुश्किल से हम सब के लिए बहुत कुछ किया, तो हमें भी उनको कुछ पे बैक करना चाहिए. हमें भी कुछ हार्ड वर्क करके उनकी मुश्किलात में आसानी लानी चाहिए. और माँ बाप के लिए इससे बड़ी खुशी कोई नहीं होती कि उनका बच्चा कुछ कर रहा है, ठीक है, और वो किसी कामयाब जगह पे है. सो सेकंड चीज़ तो ये होगी. और थर्डली मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ट्राई टू फाइंड योर इंटरेस्ट. तुम्हारा शौक किस चीज़ में. अगर तुम्हारा शौक वीडियो एडिटिंग में है तो उसे अपना पैशन बनाओ, उसे अपना एम्प्लॉयमेंट के सोर्स बनाओ. ये नहीं कि सिर्फ थोड़ी देर के लिए वीडियो एडिटिंग कर ली और उसके बाद पूरा दिन सो लिया. इसका कोई फ़ायदा नहीं है. यू आर अर्निंग नथिंग, मतलब तुम कमा कुछ नहीं रहे उससे, तो तुम्हें वो फ़ायदा नहीं है. अपने शौक को ढूंढो और अपने शौक को इम्प्लीमेंट भी करो, लेकिन अपने शौक को इम्प्लीमेंट करके उससे पैसा कमाओ. दैट्स द पॉइंट. और ट्राई करो कि अपने मुल्क के लिए कुछ अच्छा कर सको. मैं तो इतना कहूँगा, सिर्फ अपने लेवल पे मत सोचो, अपने घर के लेवल पे मत सोचो. ट्राई करो कि अपने मुल्क को इतना अच्छा बना लो कि हम लोगों को या हम सबको किसी और मुल्क में जाने की ज़रूरत ना पड़े. दैट्स व्हाट आई वांट टू से. और बाकी अल्लाह या भगवान सबके लिए मदद फरमाए, मैं तो यही कहूँगा. और आई विल विश यू अ वेरी गुड फ्यूचर to all of you. Brother, आपने बहुत अच्छे वाला tips दिया. I'm pretty sure that the youth have listened and then they have benefited a lot. And thank you so much for coming to my show. No. It was really a pleasure to have you in my show. Although I don't know you personally, I thank Eric. If Eric is watching this show, then thank you so much, Eric, for telling him to come to my show. Yeah. Yes. Thank you so much once again. It was really a pleasure to have you. Yes. So guys, that's the end of our episode, and I thank you all for watching till the end, and I will see you all in the next episode. Yep. I think it looks good. So हम कट भी कर सकते हैं ना, इश्यू नहीं है. अगर स्टार्ट हो भी गया तो. Wait, I will do a photo from that with my Alles table, so you can look at it and nothing will change. ठीक है मेरी Yeah, it's okay. I think टेबल के बिना without टेबल ठीक लग रहा है, कोई नजर तो नहीं आ रहा. Okay, okay, चलो. I don't think so. It's looking Okay. dirty. Yeah. Do you think? It's perfect. It's perfect. Man, there is my mobile. Whatever. True. ये चल रहा है. So yeah, Video started. it's not my show. Started, ना?